Okay, so very good morning, everyone. We are back with a new video, and today we're going to talk about consumer behavior, which is a very important topic of marketing subject. And this topic is not only related to UGCnet aspirants; it is also very important for topic for MBA students, for BBA students, for other competitive exam students who want to pursue any jobs in management related subjects, right? This subject, this topic is also for commerce engineering students as well. So let's begin without wasting any time. So when we talk about consumer behavior, it consists of two words, right? So consumer, who is known as to be consumer? A consumer is a person who purchases a product and consume it himself. Getting my point? There's a difference between consumer and customer. Customer is the one who buys the product, but it's not compulsion that he would consume the same product. But whereas the consumer is someone who buys the product and at the same time he consumes it. Okay. So the difference between consumer and customer is, I hope it's very much clear. Once again I'm repeating, consumer वो होता है जो प्रोडक्ट परचेस करता है, खुद कंज्यूम करता है, खुद इसे यूज करता है. कस्टमर वो होता है जो उसे परचेस करता है पर यूज नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक कि छोटे बच्चों को कुछ खिलौने चाहिए तो उनके पेरेंट्स उन्हें खरीद के देते हैं, बट उसका इस्तेमाल वो बच्चे करते हैं. तो इन दिस केस जो पेरेंट्स है वो कस्टमर हुए और कंज्यूमर कौन हुआ? द किड्स. ठीक है, ठीक है. सो इन मार्केटिंग टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स कि कौन से तरह के एडवर्टाइजमेंट हो जाए, किस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कस्टमर्स कंज्यूमर्स का क्या एक्सपेक्टेशन है, दिस थिंग्स नीड टू बी analyzed. These things need to be taken care of, for which this consumer behavior is a very important study. As you can see on the slide, consumer behavior is a study of individual, group or organization and all the activities associated with purchase, use and disposal of goods and services. Getting? जो हमने पहले बात की, consumer behavior is a study of individual, how individual reacts to a situation, how individual reacts to a service, how individual reacts to a product when he is individual, alone, or he is in group or his working organization, and how he reacts to his purchase, use and disposal of goods is nothing but consumer behavior. Okay. Consumer behavior is a complex term. Let me tell you, it includes various terminologies. It's a part of sociology, it's part of psychology, and depend on बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कंज्यूमर साइकोलॉजी. उसकी सोच कैसी, उनका परसेप्शन कैसा, उनका बिलीफ कैसा है, एटीट्यूड कैसा है चीजों की तरफ. ठीक है. सो when we talk about marketing, as a marketing team, you should be able to understand कि what consumer wants from you. आप ऐसा क्या प्रोडक्ट लाओगे, उस प्रोडक्ट को किस तरह पोर्ट्रे करोगे कि कंज्यूमर आपकी तरफ आए. इसके लिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. If you can read out the last paragraph of this slide, it is clearly mentions that understanding consumer behavior is a key element for marketing strategy. In fact, before implementing a strategy, it is essential to fully understand the needs of and the expectation of customers to you want to influence. To do this, you need to understand how the consumer will react and be influenced by marketing strategy. ठीक है. अगर हमें पता ही नहीं है कि कस्टमर को क्या चाहिए तो हम किस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे. अगर हमें पता ही नहीं है कि कस्टमर कौन से एड्स को ज्यादा देखता है, किस तरह के एड पे ज्यादा चैनल चेंज नहीं करता है, अगर वो उस तरह के एड नहीं बना पाएंगे तो वो हमसे इन्फ्लुएंस क्यों होंगे. These are certain main very important questions जिसका आंसर सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के बाद ही मार्केटिंग कंपनीज प्रोडक्ट सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनको ये सोचने के बाद ही वो लोग अपने प्रोडक्ट को अपने सर्विस को मार्केट में लाते हैं. पहले कंज्यूमर को बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो आई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने जैसे पहले बात की थी कि इट इंक्लूड्स साइकोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स. ठीक है. इकोनॉमिक्स मतलब उनकी पेइंग एबिलिटी कैसी है ना. अगर उनकी इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा बहुत अच्छा नहीं है तो आप उनको बहुत हाई फाई प्रोडक्ट्स दिखाने का मतलब नहीं है, जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी ऑफ योर्स, राइट. सो दीज आर फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट. साइकोलॉजिकल, वो मेंटली क्या सोचते हैं, उनको कौन सी चीजें पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है. बायोलॉजिकली जेंडर वाइज प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं. केमिस्ट्री एज एज, केमिस्ट्री मतलब यहाँ पे एज के बारे में हम बात कर रहे हैं. कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं. अभी अगर लाइक हम लोग किड्स को तो शेविंग क्रीम नहीं देंगे, राइट. एडल्ट को देंगे वो जो लोग इसमें है. देन कुछ फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो ये केमिस्ट्री उस पर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से एज ग्रुप में है ना, कौन से हार्मोनल चेंजेस आप में हो रहे हैं. ठीक है. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. लेट्स मूव ऑन टू द अनदर. ठीक है.
So let's understand what are the features and characteristics of consumer behavior. First is process. Process means it's a continuous process and it varies. जस्ट इमेजिन कि एक छोटा बच्चा है, उसके जरूरत छोटे बचपन की कुछ जरूरत जो अलग होगी, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा, यंग होगा, फिर बुजुर्ग होगा, उनके कुछ प्रोसेसेस में चेंज होते जाएगा. सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इज अ प्रोसेस, है ना. वो हर वक्त चेंज होते रहता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द एज, पर्सन एज, डिपेंडिंग ऑन लाइकिंग डिसलाइक्स, राइट. सेकंड फैक्टर, इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर. हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा कि इट इज इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स. वहां पे इकोनॉमिक की बात की थी, साइकोलॉजी की बात की थी. सो इट इज इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर एंड depending on those factors, sometimes consumer behavior also changes. ठीक है. Thirdly, different for all consumers, right? Because सारे consumers की जरूरत कुछ अलग होती है. Sorry. जैसे हमने पहले बात की कि एज ग्रुप होता है अलग, डिफरेंशिएट होता है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन अलग होती है. अगर हम अभी कुछ सी हॉट एरिया में रहते हैं तो वहाँ की जरूरतें कंज्यूमर कुछ अलग होगी. जहाँ पे कोल्ड सिचुएशन है वहाँ की जरूरतें कुछ अलग होगी. तो दिस इज अ डिफरेंट फॉर ऑल कंज्यूमर, इट इज रीजन बाउंडेड, राइट. ज्योग्राफिकल की बात की थी, रीजन बाउंडेड. फोर्थ, फिफ्थ वन इज वाइटल फॉर मार्केटर्स. जो हमने पहले बात की थी, मार्केटर्स को ये समझना होगा कि कंज्यूमर व्हाट दे वांट. हम कैसा प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे जिसके कारण कंज्यूमर्स, कस्टमर्स हमारे तक आ सके. अगर ऐसा प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आए जिसकी जरूरत ही नहीं है, तो हु इज गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट? इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, राइट. So it is very vital for market to understand whatever product does the consumer wants. And secondly, very importantly factor is that at which price state they should bring their product in the market, which will make sure that the consumers are coming and buying the product. Price is a very, very important topic, let me tell you, especially countries like India where people are morely price sensitive, right. So this is very, very important to understand कि हम अगर just imagine कोई प्रोडक्ट है, हम लोग जैसे फॉर इंसेंस जस्ट टेक एग्जांपल कि हमने कुछ प्रोडक्ट लाया कि जो विथ रेंज है, हेल्थ कॉन्शियस ये है, कोल्ड ड्रिंक है, जस्ट इमेजिन. एंड इट इज ऑफ एक कंपनी ने उसे प्लेस किया मार्केट में विथ 200 रुपीज पर कैन, 200 ml. एंड अनदर कंपनी कम्स हियर एंड विथ सेम कंटेंट एंड अदर, वो आती है 50 रुपीज में. Ultimately people will buy 50 rupees wala can. Why? Because we are very, very price sensitive people. So price sensitivity is also very important factor when we talk about consumer behavior. Third, sixthly, it's reflex status. ठीक है. कंज्यूमर बिहेवियर जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो हमारे स्टेटस पे, एप्पल के प्रोडक्ट्स हो गए, मैकबुक हो गया, महंगे परफ्यूम्स, महंगी वॉचेस, दीज आर रिफ्लेक्स स्टेटस. बिग कार्स, ह्यूज ऑडी, बीएमडब्ल्यू, दीज आर रिफ्लेक्स स्टेटस. ऐसा तो नहीं है कि भाई वो कार 4 लोगों को बिठाती है और मारुति 4 लोगों को बिठाती है, ऐसा नहीं है, बट रिफ्लेक्ट स्टेटस. सो दिस इज द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक. 7, स्प्रेड इफेक्ट. ठीक है. जैसे कंज्यूमर बिहेवियर के साथ जैसे जैसे आप लोगों के साथ रहोगे वो वैसे वैसे बिहेव. जस्ट इमेजिन कि आप लोग, आपके फ्रेंड सर्कल में 7 लोग हो एंड 3 ऑफ देम आर हैविंग आईफोन. आपको भी चौथे पर्सन को भी लगता है कि आई शुड हैव दिस आईफोन ना. सो दिस इज स्प्रेड इफेक्ट. कंज्यूमर बिहेवियर स्प्रेड इफेक्ट. इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि हम लोग किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, हमारा रेफरेंस ग्रुप कैसे डिफाइन करता है. एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, डायनामिक नेचर. दिस एज आई टोल्ड यू कि विद द चेंज इन सिचुएशन, विद चेंज इन economic status, this varies. It's a dynamic in nature. So I hope these are the characteristic and these are very much clear to everyone. I'm repeating it once again. It includes process. It is influenced by various factors. Factors include sociological, psychological, situational, economical. It is different for all consumers depending on the different age groups, liking, dislike, region bounded, different geographical situations. Vital for marketer to understand the price sensitivity and to come up with the product which would be liked by the consumers and they would come up and buy these products. It reflects status. So the status symbols add to it. Spread effect, like it's a reference group, and it comes with the bandwagon effect. If my friend is using it, I must have it. Spread effect, right? That is bandwagon effect. In other words, dynamic in nature, it varies from time to time. Okay, let's move on to why it is important to understand consumer behavior. हमने इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक में बात की थी कि वाइटल फॉर मार्केटर. व्हाई इट इज वाइटल फॉर मार्केटर? मार्केट को समझना चाहिए. बेटर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, कि लोग किस तरह के एड्स को समझते हैं और देखते हैं. इट शुड, ऐसे कहा जाता है कि एड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 सेकंड्स. व्हाई? बिकॉज रिटेंशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन इज वेरी मच लेस देन दैट. आप अगर बहुत लंबी एड कराओगे एंड इट्स ऑफ जस्ट ऑफ
It's monotonous. People will not understand it, and people will not even watch that advertisement. So, and to understand it, to better, you know, to communicate in a better manner, consumer behavior is little bit understood. हम अगर छोटे बच्चों की प्रोडक्ट्स बात करें तो वो सब कैसे ज्यादातर बच्चों एनिमेटेड फॉर्म में दिखाएंगे हम, सो दैट बच्चों को वो अट्रैक्ट, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, improve customer retention in this competitive market. Customer retention is very important. Let me tell you, there is a one Pareto rule comes. आप लोगों को शायद यूजीसी नेट में भी आ जाएगा सवाल. Pareto rule says that the 80% of business comes from 20% loyal customers, and to have those loyal customers you need to retain them. जब तक वो कस्टमर आपके पास रिटेन नहीं रहेगा तब तक वो आपको लॉयल्टी नहीं देने वाला है. जितना समय तक वो ज्यादा रहेगा वो आपके साथ उतना ज्यादा लॉयल बनते जाएगा. जो थर्ड पॉइंट में बात करें, इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी. ठीक है, कि उसको आप इतना भरोसा हो जाए कि वो जाके प्रोडक्ट दुकान शॉपकीपर रिटेल का जाके बोले कि मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए. दिस इज यूजुअली हैपेंस विद ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, टूथपेस्ट, गिफ्ट केयर ऑप्शन, क्योंकि हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं इशू की तरफ. ठीक है. फोर्थली, बेटर प्लान इन्वेंटरी. जस्ट इमेजिन कि आप आइसक्रीम कंपनी हो और आपको पता है कि अभी विंटर शुरू है और अभी समर में हमारी कितनी डिमांड होने वाली है. बेटर इन्वेंटरी प्लान कर सकते हैं कि इतना इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ग्रो कर सकते हैं. लास्ट 2-3 साल से कोविड की वजह से किसी ने आइसक्रीम कंज्यूम नहीं किया है, बट पीपल आर गोइंग टू कम आउट एंड हैव दिस आइसक्रीम्स इन द summers, hot summers. So we can plan inventory accordingly. And very important factor, fifth point is increases sales. But increases sales, consumer behavior का हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंक्रीज सेल करें. क्यों? क्योंकि हम उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बना पाए, उनके अकॉर्डिंगली उनके एडवर्टाइज कर पाए, उनके अकॉर्डिंगली उन्हें टैग कर पाए, उनके अकॉर्डिंगली उनको उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, और थ्रू दैट सेटिस्फैक्शन वी कैन अर्न प्रॉफिटेबिलिटी. गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज हम मार्केटिंग डिफाइन कैसे करते हैं? मार्केटिंग इज डिफाइंड एज अ process in which a organization or company looks after the needs and wants of consumer and produce the products accordingly, and through satisfaction they earn profitability, right? So basically increased sales is a very important aspect, because every organization wants to generate revenue, right? फोकट में तो कंपनी चलने वाली नहीं. So we need to understand कि revenue generate होना कितना जरूरी है. ठीक. सिक्स्थ पॉइंट इज रिसर्च कंपटीशन. ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर, रिसर्च कंपटीशन. रिसर्च समझना होगा कंज्यूमर बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है डे बाय डे, और हमारे जो कंपटीटर है वो कैसे न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, एंड व्हाट हाउ द पीपल, हाउ द कंज्यूमर्स आर रिस्पॉन्डिंग टू इट. ठीक है. अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो, एक स्पेशल पैकेजिंग में आ रहा हो और पीपल आर गेटिंग अट्रैक्ट टू इट, वी मस्ट हैव रिसर्च ऑन इट. कि हम लोग उस पर भी हम लोगों ने उस सिचुएशन को यूज करना चाहिए, कि वी शुड आल्सो कम अप विद इट. थर्डली, लास्टली, मार्केट प्रेडिक्शन. है कि हम लोग को किस तरह का मार्केट मिलने वाला है, लोगों की चेंजेस, टेस्ट कैसे डिफर हो रही है. कभी पहले हो सकता था कि हम लोग डेस्कटॉप पे बहुत रहते थे, नाउ वी आर मूविंग टू कस्टमाइज लैपटॉप्स, राइट? पहले एक जमाना था कि वो फोटो सिर्फ एल्बम में देखते थे. नाउ इट्स अ टर्न, टाइम हैज चेंज. पीपल आर यूजिंग दोस पिक्स ऑन बैक कवर ऑफ योर मोबाइल फोन्स. दीज आर सर्टेन मार्केट प्रेडिक्शन कि लोग कैसा चाहते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं आगे जाकर. तो कोविड पीरियड वाज देयर, हम लोगों ने मार्केट प्रेडिक्ट किया था. जो पहले क्यूआर कोड्स वगैरह थे, उन्हें पता था कि कोविड में नोट्स का वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है. जस्ट स्टार्टेड एनालाइजिंग इट, एंड जस्ट इमेजिन कि 2 साल में कितना सारा डिजिटल पेमेंट का ग्रोथ हुई है. सो दिस इज अ मार्केट प्रेडिक्शन. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. दिस इज, अगर कोई क्वेश्चन पूछा आपको कि व्हाई इज कंज्यूमर बिहेवियर सो इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ फॉर्म, you need to mention these all points. You can explain them in word in a couple of sentences and you will get your marks, right? I hope this is very much clear. Let's move on to the next topic, and this is a very important topic, and usually a question is seen from this topic in every kind of exams, whether it's BBA exam, BMS exam, MBA exam, MS exams, UGCnet, UGC, Maharashtra SET exam, West Bengal SET, Bihar SET, UPSC SET, all of the exam, even UPSC as well, ECIS director exam also this question comes. So let's understand what are the factors. हमने जब भी बात की थी कि consumer behavior is very dynamic and it is influenced by various factors. So let's discuss about what are the factors which affects consumer behavior when purchasing, making a purchasing decision. So in broad sense, we have divided factors influencing consumer behavior into 4 factors: situational factor, second is personal factor, social factor, and psychological factor. We'll be discussing each one of them, but in broad aspect, you can differentiate this, and even in your paper, you can make a small tree diagram or a
block diagram like this shown in the figure, and you can show your answer in a more logical and more presentable way. Okay, so let's discuss about psychological factors. Okay, psychology is a very very complex term, and at it varies as per situation. Let me tell you, हो सकता है कि इफ यूर आपका मूड अच्छा हो तो आप सोचने का तरीका अलग हो, इफ यू आर मोर कॉन्फिडेंट आपका सोचने का तरीका अलग हो, इफ यू आर लिटिल डिप्रेस्ड आपके सोचने का तरीका अलग हो. सो साइकोलॉजी इज अ मेजर डिटरमिनेंट ऑफ कंज्यूमर. दिस फैक्टर्स आर डिफिकल्ट टू मेजर. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म, हम इसको मेजर नहीं कर सकते बट आर पावरफुल इनफ टू बाय डिसीजन. ठीक है, सो इसमें कुछ टॉपिक्स है. इस मोटिवेशन, व्हेन अ पर्सन इज मोटिवेटेड एंड ही वांट्स टू हैव दैट प्रोडक्ट, he will make sure वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा. बट इफ द पर्सन is not motivated, he is demotivated and he is like just it's just a waste of money, so he is not going to buy the product. Secondly, perception. ठीक है, a perception is a very vast. Let's understand what is perception. Perception is a thinking of a person. Let's understand with example. जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में आप रहे, आपका कोई रिलेटिव रहा और आपने देखा कि उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, बट वहाँ का जो हॉस्पिटलिटी स्टाफ था, नर्सेस एंड वर्क, वो लोग काफी अच्छे थे. तो आपका एक आपकी आपके दिमाग पे एक इमेज बन गया उस हॉस्पिटल का कि दिस हॉस्पिटल इज गुड बिकॉज यहाँ पे हॉस्पिटलिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नर्सेस एंड द वार्ड बॉय इज वेरी मच गुड. ठीक है, तो एज पर योर थॉट, दिस इज योर परसेप्शन दैट दिस हॉस्पिटल इज गुड बिकॉज यहाँ पे हॉस्पिटलिटी सर्विस अच्छी है. बट वेर एज आपका दूसरा कोई फ्रेंड है, उसने देखा कि यहाँ पे डॉक्टर्स उतनी ज्यादा ट्रीटमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करते, तो अकॉर्डिंग टू हिम वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं हो सकता है. यू गेटिंग अ पॉइंट? इट इज समथिंग व्हिच यू हैव एक्सपीरियंस्ड अर्लियर, and depending on that experience you form an image ki this is good and this is bad. This is perception. Whereas belief and attitude, let's understand the difference between perception and belief and attitude. Perception is something which you have experienced earlier, and on that, from the experience you have formed the image that this thing is good and this thing is bad, right? Whereas belief is something which you haven't experienced, but from your childhood itself you have pre-assumed certain things that this thing is bad and this thing is good. For example, आपको बचपन से कहा जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज बैड, आपके दिमाग में बैठ गया है, like this is belief that cigarette smoking is bad and it's harmful for you. But if you take it as an example of perception, कि किसी ने अगर सिगरेट स्मोकिंग किया एंड ही वाज इन डिप्रेस्ड मोड, तो उसको लगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सिगरेट स्मोकिंग इज गुड फॉर हिज हेल्थ, बिकॉज गुड फॉर हिज मेंटल हेल्थ रादर, बिकॉज उसको उसके वजह से उसको अच्छा लग रहा है. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड परसेप्शन. ठीक है, सो मोटिवेशन इज वेरी मच क्लियर, परसेप्शन इज वेरी मच क्लियर, बिलीफ एंड एटीट्यूड इज वेरी मच क्लियर कि पर्सन चीजों को कैसे देखता है. एटीट्यूड डिफाइंस हाउ अ पर्सन लुक्स टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, whether he's looking towards a thing positively or negatively, defines his attitude. It comes from his childhood and how his upbringing has been developed by his parents, right? Learning is a continuous process. Let me tell you, psychological process. अब हो सकता है कि आप लोग जो डिसीजन 10th क्लास में लेते हैं वो डिसीजन शायद आप अभी नहीं लोगे, बिकॉज दिस यू हैव लर्न, यू हैव ग्रेजुअली ग्रोन एज अ चाइल्ड, यू हैव ग्रेजुअली ग्रोन एज एन इंडिविजुअल एज वेल. So these are the certain psychological factors. This is a very important factor. इसमें से आपको डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा. व्हाट इज परसेप्शन, व्हाट इज बिलीफ. आई हैव क्लियरली डिफाइंड, आई हैव क्लियरली मेंशन्ड विद एग्जांपल. आप एग्जांपल दिमाग में हरदम याद रखिए. सो दीस आर सर्टेन फैक्टर्स: मोटिवेशन, परसेप्शन, बिलीफ, एटीट्यूड एंड लर्निंग. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, सोशल फैक्टर्स. अब देखो, सोशल फैक्टर में 3 फैक्टर्स आते हैं. सोशल फैक्टर डिफाइन करता है कि आप लोग किस तरह के लोगों के साथ रहते हो, आपकी सराउंडिंग कैसी है. लेट्स अंडरस्टैंड. पहला इसमें लेट्स डिफाइन social factor divided into 3 parts: family, your reference group, role and status. Let's talk about family is a someone जिसका हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, and it's come from कि हम लोग बचपन से कुछ चीजें हमारे इसमें दिमाग में, हमारे पेरेंट्स, हमारे कल्चर और सब कल्चर के थ्रू हमारे रोज के दिनचर्या में वो आ जाती है, राइट? सो दिस इज फैमिली स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, कि हमें लगता है कि हमारे फैमिली ने बताया कि पैसे खर्च करना इज अ रॉन्ग थिंग, सेविंग मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस कम्स फ्रॉम फैमिली स्ट्रक्चर, और इसके अकॉर्डिंगली हम हमारे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर भी चेंज होता है. जस्ट इमेजिन कि फैमिली में हम लोगों ने बचपन से ही कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स हम वेयर करते हैं, तो हम लोग आगे जाके भी उसी टाइप के क्लोथ्स को वेयर करना प्रेफर करते हैं. कम्स फ्रॉम फैमिली. लाइक हम लोग, हमारा इंडिया स्टेटस होता है कि वी वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स वेयर ऑन पूजा डेज और अदर some rituals, right? So ये this comes from family. Getting a point? और अकॉर्डिंगली हम उस तरह की चीजें को बाय करना पसंद करते हैं. सेकेंडली, रेफरेंस ग्रुप इज अ ग्रुप विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैमिली, बट वो हम लोग हमारे वर्क प्लेसेस पे, हमारे कॉलेजेस में
हम किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, इसका हम रेफरेंस ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, if you're working in a corporate and you have a reference group of 50 people who are and having a good salary package of 20 lakhs and 25 lakhs, उनके कुछ चीजों का कंज्यूम करने की चीजें जो होगी वो कुछ अलग लेवल की होगी. एंड अकॉर्डिंगली यू विल आल्सो ट्राई टू फाइंड कि अगर इफ माय रेफरेंस ग्रुप इज हैविंग दोस प्रोडक्ट्स आई मस्ट यूज इट, राइट. फॉर एग्जांपल, मैंने ये बात की थी कि हमारे रेफरेंस ग्रुप में सबके पास कार है. मुझे भी लगता है कि all my colleagues, all my friends have car, I must have it. So this is a reference group, and this defines how people gonna role and status. Very common, very important factor. Reference group से आता है. This is also related to reference group. हम किस रोल में, किस स्टेटस में, हमको इकोनॉमिक स्टेटस क्या मनाना है सोसाइटी में, हम लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो वी हैव डिस्कस सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर में तीन फैक्टर होते हैं, फैमिली, रेफरेंस ग्रुप एंड रोल एंड स्टेटस. ठीक है. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद पर्सनल फैक्टर. अब पर्सनल फैक्टर जब हम बात करते हैं तो पर्सनल फैक्टर चेंज फ्रॉम वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लाइक्स डिसलाइक्स पे होता है, डिपेंड करता है. अब किसी पर्सन को अगर कोई चीज खाने की चीज पसंद नहीं है तो वो बाय क्यों करेगा, राइट. सो दिस इज अपॉन पर्सन टू पर्सन, इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू, बिकॉज लाइक्स एंड डिसलाइक्स. पर्सनल फैक्टर में उसका जेंडर भी आता है, राइट. अब वो मेल है तो कुछ अलग प्रोडक्ट्स परचेस करेगा, फीमेल है तो कुछ अलग प्रोडक्ट परचेस करेगा, एजेड है तो कुछ अलग प्रोडक्ट परचेस करेगा, यंग है लाइक ऑल ऑफ अस कुछ अलग प्रोडक्ट परचेस करेगा, चाइल्ड है, फूड है, किड है तो कुछ अलग करेगा. ठीक है. थर्ड वन एंड लास्टली सिचुएशनल फैक्टर. सिचुएशनल फैक्टर इज बेसिकली कि हम लोग को क्या, कौन सी चीज की किस वक्त जरूरत है ना. सिचुएशन पे डिपेंड करता है, एज इट्स नेम सजेस्ट. ठीक है. सो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस पे से. ठीक है. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. इसके बाद भी हम वी विल कम विद अ न्यू टॉपिक जिसपे हम थोड़ी बात करेंगे और फैक्टर्स के बारे में ना. So that's it for my side for this session. Thank you so much for listening to me. I would please request you कि आप लोग को कोई टॉपिक अगर समझ में ना आए तो प्लीज मेंशन इट इन द section, comment section, and I'll be coming with the solution as well. And if you want me to take any particular topic, please let me know. I'll be happy to take that topic as well. Thank you so much once again. Have a good day. Keep preparing well. Bye bye.